محترم زائرین قدس، الحمدللہ والشکر للہ۔ اس وقت آپ اقصی القدیم میں ہے۔ کہاں پر ہے آپ لوگ؟ اقصی القدیم کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جہاں سے مسجد اقصی کا احاطہ شروع ہوتا ہے، یہ سامنے آپ کو جو نظر آ رہی ہے وہ ہے محراب۔ کیا ہے؟ محراب۔ اس محراب کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت یہاں سے فرمائی۔ ہم اس وقت جو ہے اقصی اوپر جو مسجد ہے ایگزیکٹلی اس کے نیچے ہے، اور یہ اس کا فاؤنڈیشن ہے، نیچے کا پورا فاؤنڈیشن جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ فاؤنڈیشن آپ کو دیکھنا ہے تو ایک ایک پیلر کو چیک کر لیجیے آپ۔ یہ دیکھو سامنے جو ہے اس کی سائز کتنی ہے آپ دیکھ لیں، اس کی چوڑائی کتنی ہے آپ دیکھ لیں۔ یہ انسانوں کے ہاتھ کا نصب کیا ہوا پیلر نہیں ہے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جناتوں نے فکس کیا۔ آپ جو ہے اقصی کے فاؤنڈیشن کے پاس بیٹھے ہوئے۔ کہاں پر؟ مسجد اقصی کے فاؤنڈیشن۔ مسجد اقصی کے فاؤنڈیشن کتنے ہیں؟ یہ جو دیکھ رہے ہو وہ تو ایک حصہ ہے اس کا۔ اس کا فاؤنڈیشن پورا کور کرتا ہے، نیچے سے لے کر کے بہت دوری تک ہے۔ سامنے آپ دیکھیں، ایک ایک پیس دیکھیے آپ، یہ سامنے یہ کتنی گہرائی کے اندر ہے کسی کو نہیں معلوم۔ اس کا فاؤنڈیشن جناتوں نے کہاں سے شروع کیا ہے وہ کسی کو نہیں معلوم۔ کتنے سال لگے تھے آپ کو معلوم ہے؟ کوئی بتائیں گا؟ مسجد اقصی کو بننے کے لیے 100 سال، 100 ایئرس۔ کتنے جناتوں نے کام کیا تھا؟ بے شمار۔ ان کی تعداد کسی کو معلوم نہیں ہے کتنے جن تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ اے میرے نبی داؤد، میرا ایک گھر تم جو ہے وہ تعمیر کرو۔ جگہ متعین کی، مسجد اقصی کی جگہ کے اوپر میرا گھر تعمیر کرو۔ آپ نے سعادت سمجھی اور اللہ کے حکم کی تعمیر کرنے کے لیے آپ نے جو ہے اس جگہ کو جو ہے مسخر کرنا شروع کیا۔ اس میں ایک بڑھیا تھی، اس کی ایک جھوپڑی تھی، رہتی تھی اس کے اندر۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، بڑھیا تیری یہ جگہ جو ہے اس کی قیمت مجھ سے لے لے اور یہ جگہ خالی کر دے، مجھے تو اللہ کا حکم ہوا ہے یہاں پر مسجد اقصی کی تعمیر کرنی ہے۔ بڑھیا نے کہا نہیں، میں خالی نہیں کروں۔ کہا حکم مجھے ملا ہے، تجھے ملا ہے، لیکن یہ جگہ میری ہے، میں یہیں رہوں گی آخری دم تک، خالی نہیں کروں۔ آپ نے اسے بہت سمجھایا لیکن وہ بڑھیا ایک نہیں مانی۔ پھر آپ نے کہا کہ اگر تو نہیں مانیں گی تو میں طاقت کا استعمال کروں۔ بڑھیا نے کہا وہ تو کر سکتا لیکن مجھے منع نہیں سکتا ہے، اللہ کی اس میں جو حکمت رہی ہو۔ لیکن حکمت کیا ہے میں آپ کو بتاؤں، وہ حکمت قیامت تک کے لیے حکمت ہے۔ آج کے دور میں جو ہو رہا ہے، ہمارے یہاں جو بلڈر اللہ رحم کرے جس طریقے سے بنا لیتے ہیں اور جس طریقے سے خالی کروا دیتے ہیں، خالی اتنا سمجھ لو کہ اس بڑھیا نے منع کر دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی پوری عمر کے اندر وہاں پر مسجد اقصی بنا نہیں سکے۔ اللہ نے حکم نازل فرمایا، اے داؤد جب تک کہ وہ بڑھیا نہیں مانیں گی تب تک تو وہاں پر بنا نہیں سکتا۔ کتنی بڑی سعادت سے اللہ تعالیٰ نے رکا۔ بتانا کیا تھا اللہ تعالیٰ کو؟ اللہ چاہتا اس کے دل میں ڈال دیتا۔ بڑھیا کہتی ہے اللہ کا گھر بنانا یہ میں نے جو ہے وہ اپنے طرف سے اللہ کی راہ کے اندر صدقہ کر دیا، دے دیا۔ اللہ نے اس کے دل میں بھی مضبوطی ڈال دی کہ یہ کسی قیمت پر نہ مانے، اور داؤد علیہ السلام سے کہا کہ تم اس کو منا لو تبھی میرا گھر بنانا۔
किसी एक की झोपड़ी को भी उजाड़ करके मेरा घर मत बनाना। अल्लाह ने अपने घर को बनाने के लिए एक बुढ़िया की झोपड़ी को उखाड़ने के लिए मना कर दिया। ये क़यामत तक के लिए लोगों के लिए जो है वो सबक है, सबक। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम महरूम रह गए, मस्जिद अक्सा अल्लाह का घर नहीं बना सके। फिर उसके बाद में आपके फ़र्जंद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौर आया। चूँकि आपको मालूम था कि वालिद मोहतरम को बनाना था, बुढ़िया जो है वो फौत हो गई होगी। उसके बाद में जो है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस काम को अपने हाथ में अल्लाह के हुक्म से लिया, काम शुरू किया। अब काम शुरू किया तो उसके अंदर जो है वो कोई मामूली काम तो नहीं था, इसका फाउंडेशन। अब मुझे ये आप बताइए, खाने काबा भी बना हुआ है ना, कितना बड़ा फाउंडेशन है उसका। इसका इतना बड़ा फाउंडेशन डालने की ज़रूरत क्या थी? और वो भी जिन्नातों के हाथ से इतने बड़े बड़े चट्टाने ला करके। यहाँ पर करीब में एक पहाड़ है, पहाड़, उस पहाड़ में से ये सब चट्टाने निकली है। उस ज़माने में उसको कैसे कटिंग की, जैसे केक कटिंग होता है ना, केक, मैंने अपनी आंखों से देखा है। एक एक पीस, हमारे यहाँ मस्जिदों में जो हौज होता है ना, हौज, उसके बराबर के एक एक पीस है। एक एक पीस जो वो पत्थर के है वो इतने बड़े हैं कि हमारे यहाँ हौज जो रहता है इतना बड़ा, उतना एक पीस। और कटिंग उसकी आप देखेंगे आज भी वो पहाड़ के अंदर जितनी कटिंग की हुई है, तो ऐसा लगता है कि जैसे सैकड़ों हौज यहाँ पर सब कटिंग करके, कैसे कटिंग की होगी नीचे से और कैसे उसको उठा करके पहाड़ों पे से यहाँ पर लाए होंगे। सब किसका काम? जिन्नातों का काम। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपना काम शुरू किया। अब देखें, कोई ये समझे कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये था कि मैं इसको मुकम्मल करूँगा, अल्लाह ताला ने उस ज़रूरत को भी महसूस नहीं करवाया। मेरे बंदे, अगर तुम भी नहीं रहोगे तो भी वो मस्जिद अक्सा बन जाएंगी। लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तरीका ये था कि आप जो है खड़े रहते थे, इनके सामने खड़े रह करके काम करवाते थे जिन्नातों से, इंसानों से। इसलिए कि अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को वो मुल्क माल दिया था जो न अगले किसी अंबिया को मिला और न आखिर में किसी को मिलेगा। और आपने जो है कुरान पाक की वो आयत है, मेरे जहन से वो आयत ओझल हो रही है, अल्लाह तुम मुझे ऐसा मुल्क माल दे न किसी अगले को मिला हो न पीछे किसी को मिले, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा। इसलिए कि आपको जो कुछ मिला है वो तो जो है वो कायनात का हर खैर मिला है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इसलिए कि आपको जो लक़ब मिला है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, एक आलम के लिए आप रहमत बना करके नहीं भेजे गए, जितने आलम है वो सब की रहमत बना करके भेजे गए। नबी आप जो है सिर्फ हमारे लिए नहीं बन कर के आए, हमारे ज़माने के लिए, हमारे उम्मतियों के लिए नहीं बन कर के आए। हमसे अगले जितने नबी थे वो सब के भी नबी कौन थे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उस वक्त आपने जो है जिन्नातों से, इंसानों से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने काम लिया, इसका फाउंडेशन। फिर आप एक बार खड़े थे, हाथ में असा लिए हुए, और मलकुल मौत आ करके खड़े हो गए। अब आप मुझे ये कहिए कि हमारा कोई मिशन होता है, ये तो बहुत बड़ा काम था ना, अल्लाह का घर बना। अल्लाह ने कहा सुलेमान तुम्हारा वक्त पूरा हो गया, आप खामोश रहे। मलकुल मौत ने अपना काम किया, लेकिन अल्लाह की शान कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसे खड़े थे वैसे ही खड़े रहे, असा ऐसा रख करके। जिन्नात उनको देखते थे कि ये अपनी जगह से हिल नहीं रहे और काम, और उनका डेली का मामूल था, तो उनको ये अंदाज़ा रहा कि ये हयात है। लेकिन वो कई बरस गुजर चुके थे, आपको फौत होते, आपको इंतकाल किए कई साल गुजर गए थे, यहाँ तक कि आपके असा के अंदर दीमक आ गई। और वो दीमक ने काम करना शुरू किया। वो दीमक ने कब तक काम किया? जब तक पूरा काम कंप्लीट नहीं हुआ। मस्जिद अक्सा का काम कंप्लीट हुआ और वो लकड़ी जो है अपनी जगह से गई।
उस वक्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी जगह से नीचे आए। जिन्नातों ने देखा कि ये तो जो है वो हयात ही नहीं थे, उसके बाद में सब भाग गए, लेकिन काम कंप्लीट अल्लाह ने कैसे करवाया? अल्लाह ने अपने इस घर का काम जो है, उनकी हाज़िरी तो थी लेकिन आपकी मौत के बाद में भी कंप्लीट करवाया। तो ये फाउंडेशन आप यहाँ पर जो देख रहे हैं, इसके बाद में मैं साइड पे दूसरे बाजू ले जाऊँगा आपको, वहाँ इनके फाउंडेशन आप देखना कितनी दूरी तक है चारों तरफ। इसमें हिकमत क्या थी मैं आपको बताऊँ। आज की तारीख़ में कई सालों से यहूद जो है इसको गिराना चाहता है। किसको? मस्जिद अक्सा गिराना चाहता है, लेकिन इसका फाउंडेशन इनको अभी तक मिला नहीं। माशाअल्लाह। इसके नीचे उन्होंने सुरंग बना डाली है। किसके नीचे? इसके नीचे सुरंग है, बहुत बड़ी सुरंग है, लेकिन उनको अभी तक नहीं मालूम कि इसका फाउंडेशन कहाँ तक है और कितना मजबूत है। ये हमको देखने के लिए ये चट्टान भी आप देखो कितनी बड़ी बड़ी चट्टान है। और ये जो जगह है यहाँ पर बताया जाता है अक्सा कदीम यही है, और इमामत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। आप बोलोगे वो ऊपर का हिस्सा, ये सीढ़ी वगैरह, ये दीवार वगैरह, ये सब बाद में बनी है। पहले इसका स्ट्रक्चर जो था वो एक पहाड़ था। क्या था? पूरा पहाड़, ऊपर नीचे फरास नसेब पूरा, उसमें अलग अलग हिस्से थे इसके। वो सखरा था। उसको सखरा क्यों कहते हैं? सखरा की चट्टान है। वो चट्टान जो है जन्नत से उतरी है। कहाँ से उतरी है? जन्नत से चट्टान उतरी है।